अनुगा फ्रूट टेक इंडिया और अनुगा सेलेक्ट इंडिया 2025 का मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में शुभारंभ हुआ। यह दक्षिण एशिया में खाद्य पेय उद्योग एवं मुख्य श्रृंखला के विशाल नेटवर्क को एक बड़ा मंच प्रदान करती है। कोयन नेम से इंडिया द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 20 से 22 अगस्त 2025 तक चलने वाली है। यह कार्यक्रम नवाचार को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को सुगम बनाकर व्यापार एवं ज्ञान के आदान प्रदान को एक नया अवसर प्रदान करेगी। दक्षिण एशिया में खाद्य एवं पेय के विकास को गति प्रदान करने हेतु इस प्रदर्शनी को नए तरीके से डिजाइन किया गया है। इस वर्ष के संस्करण में 1100 से अधिक प्रदर्शक और उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां इसमें शामिल हैं, जिसमें 65 देशों से अपने नवीनतम उत्पादों एवं नवाचार का प्रदर्शन करने यहां कंपनियां भाग ले रही हैं। उद्घाटन के अवसर पर गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। पेश है खास रिपोर्ट। Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je remercie Madame Sunanda, qui est le secrétaire général de la Chambre de commerce et industrie ici à Mumbai, d'avoir lancé l'invitation à we have, Madam Zozo Binti said that we have come here from DR Congo with a women entrepreneurial delegation, and she is representing the embassy based in Delhi, and she is quite hopeful that with Anuga participation they will have fruitful interaction between Anuga exhibitors and DR Congo. They are open for joint venture opportunities. She has also invited the people to join us for B2B meeting what we have on 23rd Saturday, kept it in the honor of the visiting delegates. Thank you. As South Africa, we are very excited about this event and we appreciate the invitation because our country has a lot of potential when it comes to food and beverages. And as South Africa, we see India as the good destination in terms of our exporting of food. And we're also looking forward over the next 2 days or next 3 days for our exhibitors to learn more about food technology and food processing using technology, including the storage and the distribution channels. So we're very excited. Well, the Anuga Food Tech here in India, in Mumbai, is one of our pivotal shows that we have in our Anuga Food Tech portfolio globally. We see a lot of innovations here. So the next 3 days, I can recommend to everybody, and I will do the same and get inspired by what the exhibitors have here. As we have a global network of shows, not only on the food tech, but also on the food side, sweet technology side. We also have the big shows in Germany with Anuga Food Tech coming up in 27, which is roughly 70,000 net square meters. So you have a selection of what we show in Cologne here, and we try to bring more and more companies to India into this promising market so that they can show their new technologies, products. डेयरी ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के लिए, लेकिन देयर आर मेनी अदर इंडस्ट्रीज. यू कैन सी स्नैक फूड, यू कैन सी बेकरी, यू कैन सी मीट एंड फ्रोजन फूड. सो कहने का मतलब ये है कि वी कवर ओवरऑल कंप्लीट फूड कैटेगरी. आई मीन फूड एंड बेवरेज यू कैन से. सो दैट इज द मोटिव ऑफ डूइंग द सिंगल प्लेटफॉर्म बिग फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन इन इंडिया. टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा है. 3/4 ऑफ द शो साइज इज कवरिंग प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फूड इंग्रेडिएंट्स एंड फूड लॉजिस्टिक्स. सो ये जो ज़रूरतें जो बैकएंड में फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, यू विल सी देम मोर एंड मोर इन दिस शो. एंड इसमें आप कंपनीज फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, Italy, Germany, and US and many other countries who are participating with their technology, with their fine food like
आपने देखा साउथ अफ्रीका का पेविलियन है, वैसे काफ़ी सारे और कंट्रीज के, थाईलैंड का पेविलियन है, मलेशियन पेविलियन है. सो ये सारे बाहर के कंट्री के पेविलियन है. दे आर ऑल्सो कमिंग विद देयर specialized product into India, like the palm oil in Malaysia is very famous, so we are featuring that. South African products are there in beverages. Then you have the Saudi dates, you know, they are showing on the big platform this year, more than they were there last year for the first time, but ये साल उन्होंने और बड़ा किया, मतलब इंडिया से उनका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है. तो ये लोग बार बार अपने यहाँ पे इंडिया में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं. सर, ऐसे एक्सपो से मेक इन इंडिया को कितना बढ़ावा मिलता है, जो प्रधानमंत्री जी का थीम चल रहा है उसके बारे में? देखो, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एज इंडियन है. एट द सेम टाइम मेक इन इंडिया के लिए थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अगर होता है तो वो बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो उभरती हुई है वो आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, जो वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस द लोकलाइज इंडियन प्रोडक्ट. जैसे मिलेट्स का किसी ने बात किया था सम टाइम बैक. अब ये मिलेट्स तो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है. हम ज्वारी, बाजरी, ये सब हम मिलेट्स में घर में खाते आए हैं बचपन से. अब ये प्रोडक्ट मोदी जी के इनिशिएटिव से ही बाहर के वर्ल्ड में इतने फेमस हो गए. सो दैट इज द क्रेडिट दैट यू नो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये जो मोदी जी कर रहे हैं, तो इस पे हमको इंडियन को एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म मिल रहा है. हमारा खुद का एक शो होता है जर्मनी में जो अनुगा के नाम से पिछले 100 साल से हो रहा है. वी आर अ मोर देन 100-year-old कंपनी. सो अनुगा शो में आपको ये सब मिलेट्स का जो इंडियन कैपेबिलिटीज ऑफ मिलेट्स है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिलेट्स, वो हमारे एक्सपोर्टर्स वहाँ पे जाके अपीडा और गवर्नमेंट का पवेलियन होता है जिसमें बहुत सारे मिलेट के मैन्युफैक्चरर्स हैं. अभी तक हम देख रहे थे कि वी ओनली न्यू ब्रांड्स लाइक केलॉग्स, यू नो, फ्रॉम द millets and the breakfast side, but now there are plenty of Indian brands, you know, that are available in the domestic as well as international market. गल्फ में आप जाओगे तो बहुत सारा इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है. So these are some important things that have happened to Indian manufacturers from the initiative that Modi ji took, you know, Atmanirbhar Bharat and Make in India.